Today we start a new topic which is called as residential status. Very interesting for text. So residential status. आमे समस्त रेसिडेंट सर्टिफिकेट विषय शुणिचे दरकार पड़े आम रेसिडेंट सर्टिफिकेट करूँ तहसील ऑफिस व्हाई रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रूव्स दैट a particular person is staying in a particular place. So residential status is highly necessary for calculation of tax because without knowing the residential status of a person's tax cannot be assessed. It is not possible to assess tax or calculate tax or impose tax. So identifying the residential status is first thing before assessing the tax. Residential status means how many days a person is staying in India, whether the person is staying in India or not. If the person is staying in India, then how many days? Whether the particular person is resident in India or non-resident in India, depending upon the residential status of an individual or any other person's, tax will be imposed. Residential status does not depend upon a nationality or domicile of a person. That means लोकोडा इंडिया रे जन्म होची ना फॉरेन रे जन्म होची लोकोडा इंडिया रो ना फॉरेन रो ए सब जिंस रेसिडेंट स्टेटस पे कोन से लिंक रखेनी रेसिडेंट स्टेटस डिसाइड करा पे गोटे जिंस दरकार कि हाउ मेनी डेज द पर्सन स्टेइंग इन इंडिया गोटे लोकोटे केते दिन इंडिया रे रहउची ताकू बेस करी कि हमें रेसिडेंटल स्टेटस बाहर करूचे द रेसिडेंट स्टेटस इज प्योरली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया. It does not depend upon the nationality or domicile at all. So केवल गोटे लोक इंडिया रे केते दिन रहिला फिजिकली केते दिन स्टे करिछि ताकू बेस करी हमें रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करिबा. क्लियर? So there are some features of residential status. For example, without determining the residential status, tax cannot be assessed. Point number 1. रेसिडेंशियल स्टेटस न जानला जाय हमें टैक्स पके परिबा नाही. Point number 2. The persons can have different residential status in different assessment year or previous year. That means मने करो 2017-18 रे मु इंडिया रे थिली मु रेसिडेंट 2018-19 रे मु इंडिया रे रहली मु पूरा वर्ष जाको फॉरेन रहली मु नॉन रेसिडेंट थिली. क्लियर? सो रेसिडेंशियल स्टेटस कैन चेंज ईच ईयर एंड रेसिडेंशियल स्टेटस need to be assessed each year. प्रति वर्ष हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जानिया को पड़ेगा. तापर one person can have different residential status in a different country. माने करो मिस्टर एक्स इंडिया रे रेसिडेंट अछि यूएसए रे भी रेसिडेंट हे पारे कि यूएसए रे नॉन रेसिडेंट हे पारे आउ गोटे कंट्री रेसिडेंट हे पारे कि नॉन रेसिडेंट हे पारे. तो गोटे लोक इंडिया रे रेसिडेंट हेछि माने सब कंट्री रेसिडेंट हेछि बोली किछि गारंटी नै. तो the residential status of a persons can differ in different countries. Clear? Next, when the residential status of a person decided, then that should be final for that particular year. माने करो 2018-19 रे मु इंडिया रे रेसिडेंट अछि ता माने से वर्ष जाक मु रेसिडेंट रहिबे. नेक्स्ट ईयर को आउथरे चेक करिया हबो कि नाही. क्लियर? when a person is resident for a particular source of income, then the person is resident for all other source of income. For example, माने करो मु सैलरी पर्पस पे रेसिडेंट तो मु कहबे सर मु सैलरी पे इंडिया रे रेसिडेंट किंतु मोर पीजीबीपी इनकम पे मु नॉन रेसिडेंट सिंध हे परिबोनी. जदि गोटे सोर्स पे रेसिडेंट हेलो ताले सब जक सोर्स पे तो रेसिडेंट हे जिवो. क्लियर? These are some features of residential status. Clear? आफ्टर कहि दोछि residential status is very much important for assessing the tax. Without knowing the residential status, tax cannot be assessed. So knowing the residential status is the first important steps before assessing the tax. Clear? Residential status purely depend on the physical staying in India for a person. गोटे लोक इंडिया रे फिजिकली केते दिन रहला ता ऊपर डिपेंड करछि हमर रेसिडेंटल स्टेटस. रेसिडेंटल स्टेटस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेशनलिटी और डोमिसाइल. गोटे लोक जन्म कोडी हिला से 10 वर्ष ला कोड रहउतला से सब जिंस हमको डिपेंड करनी केवल फिजिकली ए वर्ष हम केते रहिला ता ऊपर डिपेंड करछि हमर रेसिडेंटल स्टेटस. क्लियर? एबे हम देखिबा रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर कैलकुलेटेड इन डिफरेंट मैनर्स. ता माने रेसिडेंट स्टेटस इंडिविजुअल रो कैलकुलेट करे पे किछ अलग रूल
एचयूएफ रो रेसिडेंट स्टेटस जानिया पे किछ अलगा रूल, फार्म रो जानिया पे किछ अलगा रूल, कंपनी रो जानिया पे किछ अलगा रूल। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन पे डिफरेंट रूल्स अछि रेसिडेंट स्टेटस जानिया पई। एबे देखिबा आमे इंडिविजुअल कथा रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस हमें केमिति बाहर करबा गोटे इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस हमें केमिति बाहर करबा इंडिविजुअल रो जदी हमें रेसिडेंट स्टेटस जाने पय चाहछे ताहले पिला माने हमर कुछ बेसिक कंडीशन अछि कोन अछि बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल जाने पे हमर किछि बेसिक कंडीशन अछि। तो बेसिक कंडीशन के अछि दीटा कंडीशन अछि, दीटा बेसिक कंडीशन अछि। तो जदि हमर बेसिक कंडीशन जे अछि गोटे सैटिस्फाई करला तो बेसिक कंडीशन 1 बेसिक कंडीशन 2 बेसिक कंडीशन मोर दीटा बेसिक कंडीशन अछि। गोटे बेसिक कंडीशन कोन बेसिक कंडीशन नंबर 1 the person physically but the person stayed in India, the person stayed in India in previous year 182 days or more, but I mean the person stayed in India 182 days or more in relevant previous year. Basic point number 1 basic condition number 1 होगा the person stayed in India 182 days or more in the relevant previous year. That means relevant previous year रे से पर्सन टा 182 डेज इंडिया रे रहि जाय गोटे लोक माने कर मिस्टर एक्स कथा चिंता करबा मिस्टर एक्स जदी 182 डेज इंडिया रे रहि गला ताहेले सीए हे गला कोन रेसिडेंट हे गला से इंडिया रो 182 डेज रहिले से हे गला रेसिडेंट। क्लियर तापर बेसिक कंडीशन 1 जदी गोटे लोक 100 बयस दिबा ता दिन इंडिया रहला ताले हम ताको कहबा रेसिडेंट। तापर आउट ऑफ द बेसिक कंडीशन नंबर 2 बेसिक कंडीशन नंबर 2 कोन the person stayed in India 60 days or more during the relevant previous year and 365 days in preceding 4 year. That means what la condition number 1 the person stayed in India 182 days or more during the relevant previous year. For example मोटे एग्जांपल दो चुकी हमें हमर करंट असेसमेंट ईयर केते असेसमेंट ईयर होची 2020 2021 करंट असेसमेंट ईयर 2020 2021 दैट मींस 1/4/2020 रु 31/3/2021 ए पीरियड को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कोन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होची 2019-20 2019-20 माने 1/4/2019 रु 31/3/2020 असेसमेंट ईयर 2020-21 1/4/2020 रु 31/3/2021 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ताको लागि दिबा प्रीवियस ईयर 1920 1/4/2019 to 31st March 2020. That means our assessment year 2020-21 रे टैक्स किमिति पडिबो देखिया चली गेले हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे रेसिडेंट चेक करबा
क्लियर। तो रेसिडेंट स्टेटस चेक करले आमे कहबा कि रेसिडेंट स्टेटस गुटे इंडिविजुअल देखले टाइम रे बेसिक कंडीशन चेक करबा दीटा बेसिक कंडीशन अछि कोन बेसिक कंडीशन 1 द पर्सन need to stay in India 182 days or more during the 11 previous year ता माने आमे जदी असेसमेंट ईयर 2020 21 में देखु छे रेसिडेंट स्टेटस ता माने प्रीवियस 11 प्रीवियस ईयर हेला 1920 माने 1 4 2019 रु 31 2020 भितरे लोकडा 182 डेज इंडिया रे थिबार अछि ता माने बेसिक कंडीशन 1 सैटिस्फाइड हेला जदी 182 डेज होउनी ताहले आमे बेसिक कंडीशन 2 चेक करबा जदी बेसिक कंडीशन 1 सैटिस्फाइड हे गला बेसिक कंडीशन 2 चेक करबा दरकार नाही जदी गोटे लोक रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 182 डेज इंडिया रे रहिला ताहले बेसिक कंडीशन 2 चेक करबा दरकार नाही जदी 1 सैटिस्फाइड होनी बेसिक कंडीशन 2 चेक करबा बेसिक कंडीशन 2 कोन होची ना द पर्सन स्टेड इन इंडिया 60 days or more during the relevant previous year basic condition 2 होची basic condition 1 को होला basic condition 1 होची ना लोकडा 182 days जदी relevant previous year रहिला ताहले से हे जो रेसिडेंट किंतु basic condition 2 होची ना relevant 60 days or more हमर रहितला अछि relevant previous year ता पछ 4 वर्ष रे रहितला अछि 365 days रहितला अछि ता पछ preceding previous year एटा relevant previous year preceding previous year 4 years but in the year 4 preceding previous year that means what ना जदी एनी बेसिक कंडीशन 1 हमर सैटिस्फाई करली ताहले 2 देखिबा द पर्सन स्टेड इन इंडिया 60 days or more during the relevant previous year and 365 days in the preceding 4 previous year माने ए एग्जांपल रे कोन होबो ना गोटे लोकटा माने करो 1920 रे माने करो हमर 70 दिन रहिस तापर कला 60 दिन दिला तापर चेक करे तापर पछ 4 वर्ष प्रीसीडिंग प्रीवियस माने 1920 पछरे 18 19 17 18 16 17 ଆଉ 15 16 ए 4 वर्ष भितरे 365 अछि कि नै 365 डेज क्लियर आमे देखिबा ना रिलेवेंट प्रीवियस माने कोन 1920 रे 60 दिन आउ ता पक्ष 4 वर्ष 365 डेज हेले सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई हो दैट मींस रेसिडेंट ना नहीं जानिबा को चाहिए हमर दीटा बेसिक कंडीशन हला बेसिक कंडीशन नंबर 1 द पर्सन नीड टू स्टे इन इंडिया for 182 days or more during the relevant previous year ता माने relevant previous year 182 days or more होइला होले हमर हे जो से resident then basic condition number 2 the person need to stay in India 60 days in the relevant previous year and 365 days or more during the 4 preceding previous year गत वर्ष 60 दिन रो अधिक आ ता पछ 4 वर्ष रे 365 डेज अधिक होले हमर रेसिडेंट हेजिबो ता माने आमे रेसिडेंट कि नै चेक करे अछि कहले एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एदर 1 और 2 जे कोन से गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होले मनुष्य रेसिडेंट हेला रे जाना पड़ जो पर्सन रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट जाने बोछु कहले हम देखिबा जे कोन से गोटे बेसिक कंडीशन 1 हो कि 2 हो एनी वन कंडीशन सैटिस्फाई होले रोकड़ा हेजिबो रेसिडेंट क्लियर तो बेसिक कंडीशन देटा आसला तापर हम एडिशनल कंडीशन एडिशनल कंडीशन भी देटा अछि कोन छै एडिशनल कंडीशन ना नंबर 1 एडिशनल कंडीशन रो number 1 the person must be
resident in India at least 2 years out of 10 preceding previous year. Second, the person must be stayed in India seven 30 days or more, 730 days or more during 7 preceding previous year. That means दीटा हमर थिला बेसिक कंडीशन, दीटा हो जे हमर एडिशनल कंडीशन, दीटा हो जे हमर एडिशनल कंडीशन दीटा कोन ना एडिशनल कंडीशन दीटा हो जे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन the person must be resident in India at least 2 years out of 10 preceding previous year. ता माने पक्ष 10 वर्ष भितरे 2 वर्ष इंडिया रे रेसिडेंट हे दरकार लोकडा गत 10 वर्ष भितरे माने 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भितरे 2 वर्ष रेसिडेंट हे दिया अछि. देन पॉइंट नंबर 2 होला प्रीसीडिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर गत 7 वर्ष भितरे 730 दिन इंडिया रे रहि दिया अछि. ताहले हमर दुईटा एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई होबो. एबे आमे कोन देखिबा आमे देखले बेसिक कंडीशन गोटेला द पर्सन नीड टू स्टे इन इंडिया 182 days or more in the relevant previous year. बेसिक कंडीशन नंबर 1. बेसिक कंडीशन नंबर 2 ला द पर्सन स्टे इन इंडिया 60 days or more during the relevant previous year. Clear? And 365 days or more in the preceding 4 previous year. दीटा जिंस एइदर आमे रेसिडेंट चेक करिया देखिबा एइदर हम कोन अछि गत वर्ष 122 दिन रहि बस आउ के चेक करे दरकार नै. जदी न रहिला ताले के गत वर्ष रहिछि 60 दिन आउ ता 45 वर्ष रहिछि 365 डेज. जे कोन से गोटे कंडीशन सैटिस्फाई हेले तापर एडिशनल कंडीशन चेक करिबा. जदी कोडा भी सैटिस्फाई होनी माने गत वर्ष 60 दिन भी से रहनी ता माने कोडा भी हे परिबो नाही. जदी कोडा भी हे करना नाही बेसिक कंडीशन ताले एडिशनल कंडीशन चेक करिबा दरकार नाही. क्लियर? एडिशनल कंडीशन होछि the person must be resident in India at least 2 years out of 10 preceding previous year. गत 10 वर्ष भितरे at least 2 वर्ष रेसिडेंट हे दरकार. 2 नंबर कंडीशन ला the person must be stayed in India at least 730 days or more during 7 preceding previous year. गत 7 वर्ष भितरे 730 दिन रहिथिबार अछि. हेले हम ए कंडीशन काई पडले ना एबे हम कहबे ए कंडीशन के कारण कोन खाली कोन बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन. So individual rationality चेक करिबा. इंडिविजुअल चेक करला टाइम में फर्स्ट हम देखिबा बेसिक कंडीशन. फर्स्ट हम देखिबा बेसिक कंडीशन. इंडिविजुअल हम देखछे फर्स्ट देखिबा बेसिक कंडीशन. बेसिक कंडीशन जदी एनी one basic condition satisfied. जदि जेकोसी गोटे बेसिक कंडीशन satisfy करला देन हमें कहबा रेसिडेंट. जदि जेकोसी गोटे एनी वन बेसिक कंडीशन satisfied इंडिविजुअल रो बेसिक कंडीशन भितरु जदि जेकोसी गोटे satisfy करला ताहले हमें ता कहबा रेसिडेंट. Not satisfied any one of the basic condition then non-resident.
कहते बेसिक कंडीशन जदी जे कोन से गोटे भी बेसिक कंडीशन 1 हो कि 2 हो बेसिक कंडीशन 1 नथिला ना स्टेइंग इन इंडिया 182 days or more in the relevant previous year गत वर्ष 182 days or 60 days in the relevant previous year and 365 days in preceding 4 previous year ए दुटा कंडीशन भितर जे कोन गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होले से इज रेसिडेंट जदि कोन से गोटे भी कंडीशन सैटिस्फाई करनी से नॉन रेसिडेंट हला हम चेक करे दरकार से नॉन रेसिडेंट ऑलरेडी हे गला किंतु रेसिडेंट हेले दुटा जिंस रेसिडेंट हला हम चेक करबा both the additional condition are satisfied then आगे कहबा ordinary resident not satisfied any one of the additional condition then taku कहबा not ordinary resident clear so पिला त माने कोड डिजाइन दियो आमे इंडिविजुअल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करबा जदि जे कोन से गोटे बेसिक कंडीशन चेक कर दोली ताले से एला रेसिडेंट जदि से गोटे भी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करि पाउने ताले से एला नॉन रेसिडेंट ना चेक करे दरकार नै से तो नॉन रेसिडेंट ही गला गोटे भी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करि पारला जदि जे कोन से गोटे बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करछि ताले से एला रेसिडेंट तापर हम चेक करिबा से ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट पिला माने इंडिविजुअल एदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होबो नॉले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होबो नॉले नॉन रेसिडेंट होबो क्लियर तीनटा चांस का तीनटा चॉइस एदर रेसिडेंट नॉले नॉन रेसिडेंट छाड़ दे जदि रेसिडेंट ला दी प्रकार ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तो फर्स्ट हमें बेसिक कंडीशन चेक करते रेसिडेंट ना नॉन रेसिडेंट जानिया पाए जदि गोटे बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करला ताहले हमें जानि से रेसिडेंट तापर हमें चेक करबा ऑर्डिनरी की नाही ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जानिया पे हमको चेक करे दरकार एडिशनल कंडीशन दीटा एडिशनल कंडीशन कौन से दीटा ना नंबर 1 एट लीस्ट 2 ईयर रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर गत प्रीसीडिंग 10 वर्ष भीतर 2 वर्ष रेसिडेंट एरिया अछि बेस एडिशनल कंडीशन नंबर 2 physically stayed in India 730 days or more during the 7 preceding previous year गत 7 वर्ष भीतर 730 दिन रहिया अछि दीटा एडिशनल कंडीशन कोन लास्ट 10 वर्ष भीतर 2 वर्ष रेसिडेंट हेतिबो लास्ट 7 वर्ष भीतर 730 दिन इंडिया रहितिबो ए दीटा होछि एडिशनल कंडीशन तो हमर कोन होछि बोथ द एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करे दीटा देखो इंडिया में जे कोन गोटे रे होले किंतु दीटा देखो जे एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करला ताहला हम कहबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदि जे कोन गोटे कंडीशन भी सैटिस्फाई करि पारला नाही ताहले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लियर मु तो कोन कहली पिला माने रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कोन आसिला ना प्रथम कथा आसिला पिला माने कि हमरो बेसिक कंडीशन दीटा अछि जे कोन गोटे बेसिक कंडीशन पर जदि सैटिस्फाई करला से हे जो रेसिडेंट जदि कोडा भी करि पाने नॉन रेसिडेंट ले कि चेक करे दरकार नै रेसिडेंट ले दीटा जिंस ऑर्डिनरी ना नॉट ऑर्डिनरी चेक करे हमको दीटा एडिशनल कंडीशन अछि जदि दीटा देखो एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करला ताले ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदि जे कोन गोटे भी सैटिस्फाई करि पाने ताले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लियर प्लीज नोट इट डाउन Special situations where only basic condition 1 is applicable and basic condition 2 is not applicable. That means एमिति की सिचुएशन अछि जोडी की केवल रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट जानिया पई जो हमरो दीटा बेसिक कंडीशन थिला ताइ केवल बेसिक कंडीशन 1 का एप्लीकेबल बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नाही कोन ना पॉइंट नंबर 1
इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल हेतिबो लोकटे हेतिबो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जदी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया रो लोकटा हेतिबो इंडिया छाड़ी के जाइथिबो कोन पई चाकरी करिया पई जाइथिबो ताहेले ताकू केवल 182 डेज वाला कंडीशन लागू 60 डेज आउ 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होबनी केवल बेसिक कंडीशन 1 माने जदी 182 डेज रहिला इंडिया रे ताहेले का रेसिडेंट को आजो नाइ बोली करे नॉन रेसिडेंट को आजो दैट मींस जदी गोटे इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट then only first basic condition applicable, second basic condition is not applicable. Clear? Then second point, Indian citizen being a crew member of an Indian ship leaving India जदि कौन इंडियन सिटीजन गोटे शिप रा क्रू मेंबर हिसाब रे जदि इंडिया छाड़ी जाउछि शिप माने पानी जहाज जदि गोटे क्रू मेंबर हिसाब रे जदि इंडिया छाड़छि ताहले भी ताकू सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नै केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल जोडा को हमें कहउछे 182 days वाला कंडीशन एप्लीकेबल हे परबो देन थर्ड इंडिविजुअल an Indian citizen or a person of Indian origin living India visiting India that means गोटे इंडिविजुअल हेतिबो जे कि इंडिया रे अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्म हेतिबो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया माने किछि दिन आगु हमर 1947 पूर्व इंडिया कहले हमर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनटा मिसी के हमर अनडिवाइडेड इंडिया थिला जदी कोनोसी लोक बा तार मैटरनल पेरेंट बा पैटर्नल पेरेंट जदी बापा माँ जेजेबापा जेजेमा बा अजाई बा निजे जदी अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्म होचंदी ताहले से लोकटा कोन इंडियन ओरिजिन क्लियर तो थर्ड पॉइंट बोला इंडिविजुअल हेदिबो इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया रो लोकटा बाहर रे परमानेंटली रहउथबो इंडिया को बुलिया पय आसी ताहले भी ताकू एक नंबर कंडीशन एप्लीकेबल 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नाही क्लियर सो ए इन द सिचुएशन रे बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला कंडीशन ही एप्लीकेबल होबो आउ 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होबो नाही क्लियर तो आउ जे कहलुची इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जदी कोनोसी इंडियन सिटीजन जदी चाकरी करे पय बाहर गले ताकू 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होबो पॉइंट नंबर 2 इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर इन इंडियन शिप जदी कोनोसी इंडियन शिप रे जदी क्रू मेंबर हिसाब रे इंडिया छाड़ी ताहले भी ताकू 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नाही थर्ड इंडिविजुअल इंडियन ओरिजिन और ए पर्सन ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया रे कोनोसी लोक बा ता बापा मां की जेजेबापा जेजेमा जदी इंडिया छाड़ी के परमानेंटली रही बाहर रही चंदी आउ ता बापा मां की जेजेबापा जेजेमा की से निजे अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्म होई चंदी आउ एबे से इंडिया बुलिया पे आसी ताहले भी ताको 60 दिन वाला कंडीशन लागू नाही 182 डेज वाला कंडीशन ता लागू क्लियर तो एबे हम देखले एक्सेप्शंस आज हम कोन देखले रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स हमर कोन ए तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होबो रेसिडेंट रो दीटा कथा ऑर्डिनरी नले नॉट ऑर्डिनरी होबो रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट देखियो ताहले हम कोन देखु बेसिक कंडीशन चेक करते दीटा बेसिक कंडीशन रो देखो जे गोटे बेसिक कंडीशन जदी हमर सैटिस्फाई हे गला ताहले से हे जिवो कोन रेसिडेंट किंतु ए दीटा सिचुएशन पाई बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नै केवल बेसिक कंडीशन 1 नागा एप्लीकेबल जदी जे कोनसे गोटे बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई कला ताहले हम चेक करबा एडिशनल कंडीशन दीटा अछि जो दीटा जाक एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई हे गला ताहले हम करबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदी जे कोनसे गोटे भी कंडीशन सैटिस्फाई करि पाने ताहले से जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लियर आमे देखिले जस्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट सबले मन रखिबो कि जेतलो तुम 182 डेज की 60 डेज की जहां भी नंबर ऑफ डेज काउंट करजो गोटे लोकर सेतलो से जो दिन इंडिया को आसला से दिन भी काउंट करिवो जो दिन इंडिया छला से दिन भी काउंट करिवो फॉर एग्जांपल माने तो 24 तारिख दिन 24 24 तारिख दिन माने केतो हम बुझले ना 12टा 1 एम हेला लिखला हम 24 तारिख हेला तो 12टा 1 एम को हम कहते एक्जेक्टली 12 पीएम हेला पर्यंत हम रहबो 24 तारिख तो जे कोन को डेट होई कोन राती 12 टा राती 5 से हम डेट टाइमिंग सब तो माने करो गोटे लोक आसी इंडिया रे पहुंचला 11:55 पीएम ता माने आउ 5 मिनिट बाकी अछि माने 24 तारिख दिन 5 मिनिट बाकी अछि किंतु से पहुंचला तो 5 मिनिट अछि हेले भी सेतिटा काउंट करिवो माने जो दिन आसी इंडिया रे पहुंचो से दिन जहां टाइम फर्स्ट हो 12टा 1 हेला नेक्स्ट दिन काउंट 12टा पूर्व अछि बोली कहले से दिन होगा जो दिन इंडिया को आसबो से दिन भी काउंट जो दिन इंडिया छाड़िबो से दिन भी काउंट क्लियर
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास रे आगु देखिबा रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एचयूएफ फार्म कंपनी ओपीबीओ एमाने कि करछोनी क्लियर। आज हम देखले रेसिडेंट स्टेटस ऑफ केवल इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।